last 3-4 weeks, we're looking at the aspect of, first of all, receiving the abundant grace of God and removing hindrances in grace. और पिछले कुछ हफ्ते से हम देख रहे हैं कैसे हम परमेश्वर के अनुग्रह को की सारी आशीषों को पा सकते हैं और क्या-क्या बाधाएं हैं और उनको हम कैसे हटा सकते हैं. And we spoke about one of the main hindrances in grace is pride, the pride of man. और हमने देखा था कि एक बहुत बड़ी बाधा जो है परमेश्वर के अनुग्रह में वो है मनुष्य का घमंड. And based on Old Testament, the book of Proverbs, chapter 3, verse 34, where it says, God resists the proud, he gives grace to the humble. और नीति वचन 3 अध्याय 33वें आयत के अनुसार हमने देखा कि 34वें आयत में कि परमेश्वर जो है ठट्टा करने वाले से तो निश्चय ठट्टा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है. Then we looked at the aspect of how we can humble ourselves. 2 weeks we looked at that. Last Wednesday and the previous Wednesday, how we can learn to humble ourselves before God and how it's important to thereby receive more and more grace from God for His glory. और हमने देखा था पिछले हफ्ते भी कि हम कैसे, और पिछले से पिछले हफ्ते में भी, कि कैसे हम अपने आप को नम्र कर सकते हैं, कैसे जो बाधाएं हैं हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को आने से जो रोकती हैं उनको हम कैसे हटा सकते हैं. Now what happens when we humble ourselves? तो क्या होता है जब अपने आप को नम्र करते हैं? We receive more grace from God and God will lift us up. हम परमेश्वर से और अनुग्रह पाते हैं और परमेश्वर ही हमें ऊंचा उठाता है. Now if you look at 1 Peter chapter 5 verse 5, अगर हम पहला पत्रस 5वां अध्याय की 5वीं आयत को देखें, there Peter is quoting the Old Testament Proverbs 3:34. और पत्रस यहाँ पे जो है पुराने नियम में नीति वचन 3 अध्याय 34वीं आयत को ही यहाँ पे बता रहे हैं. And then the 6th verse it says, humble yourself under God's mighty hand and he lift you up in due time. और 6ठी आयत में वो कहते हैं इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए. As we humble ourselves, he says, God will lift us up in due time. At the right time, he will lift us up. और वो कहता है कि अगर हम जैसे अपने आप को परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रखते हैं, परमेश्वर अपने सही समय में हमें ऊंचा उठाता है. The same way, James also writes in James chapter 4 verse 10. और याकूब 4 अध्याय उसकी 10वीं आयत में भी हम पढ़ते हैं, humble yourself before God and he will lift you up. कि अपने आप को परमेश्वर के हाथ में के नीचे नम्र करो और वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा. In the Old Testament, in the book of Proverbs, chapter 15, verse 33, it says, humility comes before honor. और नीति वचन 15:33 में कहता है आदर से पहले नम्रता आती है. Invariably, when we humble ourselves, God will lift us up for us to be seen by people. और जब हम परमेश्वर से हम नम्र होते हैं तो परमेश्वर जो हमारे को ऊंचा उठाता है ताकि सब लोग हमें देख सके. And the purpose of God lifting us up is that we glorify his name. और इसके पीछे परमेश्वर की मनसा ये होती है कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें. So today's topic is exalted to glorify. और आज का जो विषय है वो यही है कि ऊंचा उठाया जाना ताकि परमेश्वर की महिमा हो. As we humble ourselves before God, he will lift us up to be seen by people, so that at that point of time we glorify the name of Jesus Christ. और परमेश्वर की मनसा हमारी है जैसे अपने आप को नम्र करते हैं, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है और उससे परमेश्वर के नाम के ही नाम ऊंचा हो, उसी की महिमा हो. The Lord during the Sermon on the Mount, he told the people, और परमेश्वर ने पहाड़ी संदेश में लोगों से बोला in Matthew chapter 5 from verse 14, मत्ती 5वां अध्याय 14वीं आयत से आगे, you are the lights of the world, कि तुम जगत की ज्योति हो. a city on a hill. एक नगर जो पहाड़ पे बसा हुआ है, City on a hill cannot be hidden. और वह छिप नहीं सकता. No one lights a lamp and puts it under a bushel. और कोई भी दीपक जला के उसे पलंग के नीचे नहीं रख देता. It gives light to the surroundings. और परंतु वो दीप को ऊपर रखता है ताकि वो सब लोगों को प्रकाश पहुंचा सके. Same in verse 16 he writes, he said, as quoted in verse 16, let your light so shine before men, they'll see your good deeds and praise your Father in heaven. और 16वीं आयत में लिखा है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे. The light in us is the light of the knowledge of glory of God in the face of Christ. और जो ज्योति हमारे अंदर है वो परमेश्वर की है, जो परमेश्वर पर हमने विश्वास किया उससे महिमा जो हमारे अंदर उसका प्रकाश है. That's the light we have. Christ in us is light. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर वही ज्योति है हमारे अंदर. And 2 Corinthians 4th chapter 6 and 7 is written. और 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 6ठी और 7वीं आयत में लिखा है.
For God who said, "Let light shine out of darkness," made his light shine in our hearts. इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका, To give us the light of knowledge of glory of God in the face of Christ. कि परमेश्वर की महिमा की पहचान और ज्योति मसीह यीशु के चेहरे से प्रकाशमान हो। But we have this treasure in jars of clay to show that this all surpassing power is from God and not from us. परंतु हमारे पास ये धन मट्टी के बर्तनों में रखा है कि वह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। As we humble ourselves, God will lift us up to be seen by people, to be visible to the world, like a city on a hill, light of the world. और जब हम परमेश्वर के सामने अपने को नम्र करते हैं, परमेश्वर हमें उठाता है ताकि सब लोग देखें, जैसे कि एक ज्योति जो कि ऊपर रखी जाती है, और जैसे कि हम परमेश्वर की ज्योति की तरह जो ऊपर रखी जाती है, सब लोग देख सकें। In 1 Peter chapter 2 verse 12, Peter also writes, और पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसकी 12वीं आयत में भी पत्रस ऐसा लिखता है, live such good lives among people that though they accuse you of doing wrong, they'll see our good deeds and glorify God the day he visits us. अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन बना हो, भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले काम को देखकर उसी के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। As we humble ourselves and receive more and more grace from God, we go about fulfilling his purpose for our lives. और जब हम परमेश्वर के साथ नम्र होते हैं, परमेश्वर के हमें नम्र करता है और परमेश्वर के मकसद को हम अपने जीवन से पूरा करते हैं, We should be surprised that God will make us visible to the world. People come to us and be inspired by the life that we live. और इसमें हमारे को चमन होनी चाहिए कि जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे को ऊंचा उठाएगा और हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलेगी और दूसरे लोगों को भी उससे प्रकाश मिलेगा। That's when you must realize the primary purpose of God make us a display to the whole world is that we lift up the name of Jesus, that they call upon Jesus' name and be saved. और हमारे को इस बात समझ लेनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे को इसलिए उठाते हैं, हम जब नम्र होते हैं इसलिए उठाते हैं ताकि उसका एक ही मकसद है कि प्रभु को आदर मिले और हमारे जीवन से दूसरे लोग उद्धार पा सकें। We are called to glorify the name of Jesus. हमें बुलाया गया है कि प्रभु के नाम को, मसीह के नाम को ऊंचा करें। One example of humility in the New Testament, apart from Jesus, of course, is the Apostle Paul. और एक और उदाहरण नए नियम में अगर हम देखें, प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई उदाहरण देखते हैं तो वो पौलुस का जीवन है। And after becoming an apostle, and he wrote to the Ephesians in chapter 3, verse 8. और इफिसियों 3 अध्याय 8वीं आयत में वो इस तरह से लिखते हैं, Although I am less than the least of all God's people, this grace was given to me to preach to Gentiles the unsearchable riches of Christ. मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैंने जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। After becoming an apostle, he says, I am less than the least of all God's people. प्रेरित बनने के बाद वो कहता है कि मैं सब लोगों में छोटे से भी छोटा हूं। In 1 Corinthians 15:9, he writes, I am the least of the apostles, do not even deserve to be called an apostle. और पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 9वीं आयत में वो कहता है, क्योंकि मैं प्रेरित में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कराने के योग्य भी नहीं हूं। To Timothy, he wrote about how he is the least of the God's people. तो तिमोथी को वो लिखते समय कहता है कि कैसे परमेश्वर के लोगों में वो सबसे छोटा है। And the worst of sinners, he writes. वो कहता है कि सब पापियों में सबसे बड़ा है। And after becoming an apostle, not that he was before very humble, now he's become, someone very great. और ये प्रेरित बनने के बाद ऐसा नहीं कि वो पहले बड़ा नम्र था कि और अब बहुत महान हो गया है। He was consistent in his humility. वो अपनी नम्रता में लगातार बना रहा। And you look at the New Testament, almost the entire New Testament after the crucifixion of Christ is dominated by the writings of the Apostle Paul. और नए नियम में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा जाने के बाद जितने भी पत्रियां हैं, पुस्तकें हैं, वो सब पौलुस के हाथ से लिखी हुई हैं। But the secret of Paul's ministry is the fact that he glorified Jesus. और उसकी सेवकाई का एक बहुत मुख्य मकसद था कि उसने अपनी सेवकाई से, अपने जीवन से प्रभु के नाम को महिमा दी। In Philippians chapter 3, verse 3, he writes, फिलिपियों 3:3 में पौलुस लिखते हैं, it's we who worship by the Spirit of God, who glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh.
क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और यीशु मसीह पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। To Romans, he wrote in Romans 15:17, तो रोमियो 15:17 में वो लिखते हैं, I glory in Christ Jesus in my service to God. मैं सब बातों में परमेश्वर के समझ रखती है, मसीह यीशु में बड़ाई करता हूँ। Let me first explain the difference between praising, exalting, and glorifying. हमें फर्क समझना चाहिए, ऊंचा करना और महिमा करना और उसकी बड़ाई करना, इसमें क्या फर्क है? Praising is स्तुति करना, no? स्तुति करना। Okay. हाँ। Praising, exalting, and glorifying. What's the difference? इन तीनों में क्या फर्क है? किसी की स्तुति करना, किसी की बड़ाई करना और किसी के नाम को ऊंचा करना। Now, to praise someone is to speak well of that person. अगर हम किसी की बड़ाई करें, स्तुति कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम उसके बारे में अच्छी बात बोल रहे हैं। We praise God to people, and we praise God, and it's also called blessing God. Bless the Lord, O my soul, Bible says. और ये एक तरह से जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि हे मेरे मन परमेश्वर की स्तुति कर, तो मतलब उसके नाम की बड़ाई करना, उसके बारे में अच्छा बोलना। उसके बारे में अच्छा बोलना। As compared to cursing means speaking bad. और उसके विरोध में श्राप देना है, जैसे कि उसका मतलब है कि हम उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं। Exalting is to lift up a person. और exalt मतलब नाम को ऊंचा करना, मतलब उसके नाम को ऊंचा, उसकी बड़ाई करना। For example, John 12:32, Jesus says, when I am lifted up, I will draw people to myself. और नाम ऊंचा करना मतलब जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना उसके 12वें अध्याय की 32वें आयत में कि यदि मैं पृथ्वी पर से ऊपर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। Now, when we humble ourselves before God and receive grace from God, our lives change, and the Lord will Himself lift us up. और जब प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हम परमेश्वर के हम अपने आप को नम्र करते हैं, परमेश्वर अपने समय में अपने आप हमारे को ऊंचा उठाते हैं। And when He lifts us up, we shouldn't take glory for ourselves. तो जब हमें ऊंचा उठाते हैं तो हमारे को उसके लिए महिमा अपने लिए नहीं लेनी है। Now, what is the meaning of glorifying? और महिमा करने का मतलब क्या है? To glorify is to give credit. मतलब महिमा करना मतलब कि उसका श्रेय उसको देना। For example, when God lifts up, when people see good in us, He must give the Lord all the credits. Because of Him, I am what I am. उसको श्रेय देना मतलब कि ये स्वीकार करना कि प्रभु जो कुछ भी मैं हूं वो आपकी वजह से। So giving God credit is glorifying the Lord. तो परमेश्वर को उसका श्रेय देना मतलब ये उसको महिमा देना। When it comes to God, all of us are called to praise Him, speak well of Him, exalt Him, lift up His name, and glorify Him. Give Him all the credit for whatever good there is in us. तो जब प्रभु के पास आते हैं तो उसकी महिमा करना मतलब उसके बारे में अच्छा बोलना और उसके नाम को ऊंचा करना, सारा श्रेय उसको देना। और महिमा देना मतलब उसकी महिमा करना मतलब सारा श्रेय उसको देना और उसके नाम को ऊंचा करना। The essence of the ministry God gave to Paul, we all do well to emulate. ब्रदर रिपीट करना। The essence of the ministry of Paul, we will do well to follow and imitate. और हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर हम पौलुस की सेवकाई जो है उसकी नकल करें, उसको समझें। In his ministry, it's primarily lifting up the name of Jesus and building up people. और पौलुस की सेवकाई का एक ही मकसद था कि प्रभु के नाम को ऊंचा करे और लोगों को मजबूत करे। He glorified the Lord for everything good in him. तो परमेश्वर की हर बात में जो भी उसके अंदर भली थी, परमेश्वर को ही उसको महिमा देता है। When people glorified him, he in turn glorified the Lord. He didn't take glory for himself. जब लोगों ने पौलुस की बड़ाई करी, पौलुस ने सारी महिमा जो है उसका आदर परमेश्वर को दे दिया, उसने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। When people were comparing him with Apollos and Cephas and some even said I follow Jesus in Corinth, he addressed the issue. और कुछ लोगों ने जब बोला कि हम तो पौलुस के पीछे चलते हैं, कोई कहता है पौलुस के पीछे चलते हैं, कोई कैफा के पीछे, कोई यीशु मसीह के पीछे, तो वो कहता है कि वो अपने आप को उससे बिल्कुल अलग करता है, कहता है मैं तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ। Primarily Apollos and Paul were compared by the Corinthians. और जो कोरिन्थ के लोग थे वो ही पौलुस को और अपोलोस के बीच में तुलना कर रहे थे। Apollos went after Paul went. Paul planted seed, Apollos watered it. और पहले पौलुस गया था, बाद में अपोलोस गया था। लिखा है पौलुस ने बोया और अपोलोस ने उसको सींचा। As opposed to Ephesus, where first Apollos went, then Paul went.
और इफिसियंस में दूसरा था, पहले अपोलोस गया, बाद में पौलुस गया। And there are two different kinds of preachers, teachers. They are different styles, different giftings. और दोनों को अलग अलग दान था, दोनों को प्रचार करने का अलग अलग तरीका था, And people began to compare them. और लोग उनकी तुलना करने लगे। And in 1 Corinthians 3rd chapter, 6 and 7, Paul writes, और पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 6 और 7 आयत में पौलुस लिखते हैं, I planted seed, Apollos watered, God gave the growth. मैंने लगाया, पौलुस ने सींचा, पर परमेश्वर ने बढ़ाया। Neither he plants anything or he waters, only God gives growth. इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। It goes on to explain in 4th chapter, और 4 आयत में उसी को आगे समझाते हैं, verse 1 and 2. पहली दूसरी आयत में, Men ought to regard us as servants of Christ and as those entrusted with the secret things of God. मनुष्य हमें मसीह का सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें। Now it's required that those who have been given a trust must prove faithful. फिर ये भंडारी में ये बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। Then verse 7 he says, who makes you different from anyone else? और फिर आगे 7वीं आयत में कहते हैं, क्योंकि तुझ में और दूसरों में कौन भेद करता है? What do you have which you did not receive? तो तेरे पास क्या है जो तूने नहीं पाया? And you received it, why do you boast as you did not receive it? और जब तूने पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया? So Paul knew that whatever giftings he had was a gift of God, and the giver is most important, the gifts are secondary. और पौलुस इसलिए इस बात को बड़ा समझता है कि उसके पास जो कुछ है परमेश्वर की ओर से, देने वाला महत्वपूर्ण है, पाने वाला तो दूसरा है। And therefore we see clearly how his entire life was focused on lifting up, glorifying the name of Jesus. और हम देखते हैं उसका पूरा जीवन जो था वो इसी मकसद से लगा हुआ था कि कैसे मसीह के नाम को ऊंचा ठहराए। As an apostle of Christ, God gave authority in his ministry. और एक पौलुस प्रेरित होने के नाते से परमेश्वर ने उसकी सेवकाई में उसको अधिकार दिया। And the apostle Paul understood the purpose of God giving him the authority. और पौलुस इस मकसद को भी समझ गया कि परमेश्वर ने उसको ये अधिकार क्यों दिया है। He had the wisdom to know how to use authority. उसको ये बुद्धि थी कि उस अधिकार को किस तरह से सही रीति से प्रयोग करे। In 2 Corinthians chapter 10 verse 8 दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, and 13th chapter verse 10, और 13वीं आयत की 10वीं आयत में wrote about how the God gave authority to build up people, not to tear them down. वो कहता है कि कैसे परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया कि लोगों को बढ़ाए, उनको गिराए नहीं, For edification, not destruction. उनको बढ़ाने के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं। So as we go about humbling ourselves and watching our life very carefully, don't be surprised if God in his own initiative will lift us up. तो जब परमेश्वर की सेवा नम्रता से करते हैं तो आप इसमें चंबा ना करें कि परमेश्वर कैसे अपनी मर्जी से ही हमारे नाम को ऊंचा करता है। And lifting up means making us visible to the world. और हमारे को ऊंचा उठाना मतलब हमारे को लोगों को हम ऐसा जगह कर पहुंचाना कि लोग हमें देख सके। We are the light of the world. हम जगत की ज्योति हैं, Salt of the earth. जगत के नमक हैं। And sometimes, when Christians are a minority in certain places, they say, I'm only a minority, I can't do much. और बहुत से विश्वासी लोग जो कम संख्या में होते हैं वो कहते हैं हम तो अल्पसंख्यक के हैं, हम तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। Minority. It's good to be a minority. और ये अल्पसंख्यक होना तो अच्छी बात है, Because we are salt of the earth. क्योंकि हम जगत के नमक हैं। Matthew 5:13, the salt of the earth. मत्ती 5वां अध्याय उसकी 13वीं आयत कि हम जगत के नमक हैं। If 90% of chicken biryani was salt, how will it taste? अगर पूरे चिकन बिरयानी में 90% नमक ही डाल दें तो कैसा लगेगा? Yes, we are minority only. इसलिए तो हमारे को अल्पसंख्यक होना ही जरूरी है। But this salt adds flavor to the dish. और ये नमक जो है उस खाने में उसका स्वाद लेके आ जाता है। In the same way, we are called to be the flavor to the world. उसी तरह से हमें बुलाया गया कि हम जगत के लिए एक स्वाद लेके आए जगत में। And we are never alone. We are actually our bodies are temples of the Holy Spirit, and God works in and through us. और हम जो है हम तो परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है और हमारे द्वारा से हमारे से वो अपनी सेवा लेते हैं। But as we go about in the ministry, there's a danger that after some time, if we're not careful, a new kind of pride can enter us and has an adjective called spiritual.
और ये बहुत इसमें अपने आप को तैयार और बहुत चौकस रहने की बात इसमें है कि जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर घमंड आ जाता है और उसमें हम उसको एक नाम दे देते हैं कि हम बड़े आत्मिक हैं। And we keep on glorifying the Lord, then that will not happen. पर अगर हम परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। And the Apostle Paul's boasting was the cross. और पौलुस की जो घमंड करने की बात है वो कहता है क्रूस पे मेरा घमंड है। Now, when he faced different kinds of people, people had different perceptions when they came to him. और पौलुस जब लोगों का सामना करता है, लोग उसके पास आते थे, तो पौलुस का एक अलग ही नजरिया था। He faced Jews, he faced Gentiles. उसने अन्य जातियों का भी सामना किया, यहूदियों का भी सामना किया। In 1 Corinthians chapter 1 from verse 22 we read, और पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 22वीं आयत से आगे हम पढ़ते हैं, Jews demand signs, Greeks look for wisdom. यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं। But we preach Christ crucified. पर हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। Stumbling block to those foolish Gentiles, but all whom God has called, Christ the power of God, Christ the wisdom of God. जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है, परंतु जो बुलाए गए हैं वे क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। When Jews wanted to see miracles and signs and wonders, Paul could have done it. अगर जब यहूदी लोग चिन्ह चाह रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह कर सकते थे और पौलुस ऐसा कर सकता था। Because the marks on apostle are signs, wonders, and miracles. क्योंकि प्रेरित की पहचान ही है कि वो चिन्ह और आश्चर्य कर्म कर सकता है। That's a mark of an apostle. 2 Corinthians 12:12. That's how we identify apostles. और ये इसको हम पढ़ते हैं कि इसको हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के 12वें अध्याय उसकी 12वीं आयत में, ये उसके प्रेरितों के लक्षण है कि वो signs, wonders, and miracles. हाँ वो अद्भुत काम, सामर्थ्य काम दिखा सकते हैं, चिन्ह कर सकते हैं। And when God gives a gift like that, he will not take back. और परमेश्वर अगर ऐसा कोई दान देता है तो उसको देने के बाद वापस नहीं लेगा। That's the nature of God. ये तो परमेश्वर का स्वभाव है। Romans 11:29. His gifts and his call are irrevocable. और वो रोमियो 11:29 में कहता है क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। So when Jews wanted signs, Paul could have done miracle to show them, you want a sign, here's a sign. I'm an apostle, I can do it. But और जब यहूदी लोग जब पौलुस से चिन्ह मांग रहे थे, पौलुस कर सकता था और वो कहता हाँ देखो तुम चिन्ह चाह रहे हो, मैं प्रेरित हूँ, ये चिन्ह करके दिखा देता हूँ। The same when Greeks wanted answers to questions, wanted wisdom. Being a man gifted with wisdom, he could also manifested his wisdom, shown off his wisdom. और यूनानी लोग जब उससे ज्ञान की बात करते थे, रोम क्योंकि वो बड़ा ज्ञानवान व्यक्ति था, वो उनको ज्ञान की बातें भी बता सकता था। But he preached Christ crucified. और उसने क्रूस पे चढ़े हुए यीशु मसीह का ही प्रचार किया। And the cross was foolishness, those who are perishing, foolishness, yet he preached it because some will be saved, some will not be saved. और जो नाश होने वाले हैं उनके लिए तो क्रूस का प्रचार जो है वो मूर्खता है, और उसने फिर भी प्रचार किया क्योंकि कुछ बचेंगे कुछ नहीं बचेंगे। For some people, foolishness, some people it is the power of God for salvation. He did not know who's what, but anyway he said the Christ. कुछ लोगों के लिए मूर्खता है, कुछ के लिए उद्धार के लिए उद्धार की सामर्थ है, इसलिए उसने सुसमाचार प्रचार किया, कुछ बचे कुछ ना बचे। Same Christ is the power of God to work miracles for some, foolishness to others. और इसी तरह से आश्चर्य कर्म करके भी वो किसी के लिए मूर्खता है, किसी के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। And for some the wisdom of God, for some foolishness of God. और उसी तरह से परमेश्वर का ज्ञान जो है किसी के लिए मूर्खता है, किसी के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, ज्ञान है। He preached Christ crucified. और पौलुस जो है उसने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़े हैं उसका ही प्रचार किया। The cross was his boast. और क्रूस पे ही वो घमंड करता था। Galatians 6:14 says, "May I never boast except in the cross of my Lord Jesus Christ, through which the world is crucified to me and I've been crucified to the world." गलतियों 6:14 में कहता है, परंतु ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर का जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि पे क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। So as the Lord lifts us up, as we humble ourselves, first is humbling, then lifting us up, and then we glorify Jesus. और तो हम जब परमेश्वर के पास नम्र होते हैं, पहले हम नम्र होते हैं और उसके बाद परमेश्वर जो है हमारे को ऊपर उठाता है। We give him credit for every good thing we have. और हमारे पास जो भी भली चीज है उसके लिए परमेश्वर को हम श्रेय देते हैं। So we know in our hearts, according to James 1:17, every good and perfect gift comes from Father in heaven, who doesn't change like shifting shadows.
याकूब 1:17 के अनुसार हम इस बात को जानते हैं, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान उसी ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से ही मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। And throughout our life, we should be very careful about not letting this pride slowly grow in our hearts. और हमें अपने पूरे जीवन में इस बात के लिए बड़ा चौकस रहना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो धीरे धीरे कहीं चुपके से ये घमंड हमारे जीवन में आने लग जाए। As Paul advised Timothy in 1 Timothy 4:16, और जैसे पौलुस ने तिमोथी को बताया 1 तिमोथी 4:16 में, watch your life and doctrine closely. इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि ये अपने सिद्धांतों को, अपनी उपदेशों को पर चौकसी रख। Persevere in them, for if you do, you'll save both yourself and your hearers. और इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता है तो तू अपने और सुनने वाले के लिए भी उद्धार का कारण होगा। One more example of humility in the Old Testament is an amazing life of Moses. और एक और पुराने नियम में उदाहरण जो अगर हम देखें नम्रता का, तो बहुत अद्भुत उदाहरण है मूसा का। In 12th chapter Numbers, we read about Moses in the verse 3. और गिनती उसके 12वें अध्याय की 3री आयत में उसके बारे में पढ़ते हैं। Moses was a very humble man, more humble than anybody else on the face of the earth. मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों में बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। The most humble man at that point of time on earth. पृथ्वी पे उस समय में सबसे नम्र व्यक्ति था। And we know how God used him so wonderfully. और हम जानते हैं परमेश्वर ने कैसे उसको कितने अद्भुत रीति से उसका प्रयोग किया। And one common factor between Moses and Paul is they both were people who were hungry for the knowledge of God. और दोनों में, पौलुस में और मूसा में एक ही बात थी कि वो उसमें नम्रता थी और परमेश्वर के वचन लोगों के लिए, उसके लिए भूख थी उनके अंदर। And if you look at Exodus 30th chapter verse 13, when God tells Moses he had found favor on God's side, Moses says, if I found favor in your sight, teach me your ways that I might know you and continue to find favor with you. Exodus which chapter brother? Chapter 33 verse 13. 33 और उसकी 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे मैं जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तो तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, फिर इसकी भी सुधि कर कि यह जाति तेरी प्रजा है। I want to know your ways. जो कहता मैं तेरी गति जानना चाहता हूं। I want to know you. He has a hunger to know God more and more. वो उसके अंदर ये भूख थी कि परमेश्वर को और अधिक जाने। Same with the Apostle Paul, Philippians 3:10. I want to know Christ and the power of the resurrection. और उसी तरह पौलुस भी है, उसके अंदर भी यही भूख है। फिलिपियों उसका 10वीं आयत में कहता और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों के सहभागी होने में के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु का समानता प्राप्त करूं। It all comes down to, do we love God? और ये सब बात एक बात पे आ जाती है कि क्या मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। If we love the Lord, we'll boast about him, we'll lift him up, we'll glorify his name, we'll praise him. और अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसके नाम की स्तुति बढ़ाई करेंगे, उसको भला बोलेंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे और वो सारा श्रेय उसको देंगे। The Bible talks about how in the last days there'll be people who are lovers of themselves, not lovers of God. वो बाइबल में बड़ी चेतावनी है कि अंत के दिनों में लोग जो है अपने से प्रेम करने वाले होंगे, परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे। When we love ourselves, we'll take glory for ourselves. जब अपने से प्रेम करेंगे तो हम सारा श्रेय, सारी महिमा अपने लिए ले लेंगे। We'll love God, we'll give him all the glory. और अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो सारी महिमा परमेश्वर को दे देंगे। Now, it's very important that God gave warning to Israelites before they enter the land of Canaan, how he's going to bless them in their land. और परमेश्वर ने इससे पहले कि इस्राएल लोग कनान देश में प्रवेश करते हैं, उनको चेतावनी दी और बताया कि कैसे उन लोगों को वहां पे वो आशीष देंगे। And he gave them a caution. और उन्हें चेतावनी दी। Book of Deuteronomy, 8th chapter, 17-18. व्यवस्थाकरण 8वां अध्याय 17 और 18वीं आयत। You may say to yourself, my power and the strength of my hands produce wealth for me. और तुम ये ना सोचने लगे हो कि यह संपत्ति मेरी सामर्थ्य से, मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। But remember the Lord your God who gives the ability to produce wealth. परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है। Don't forget to glorify the Lord. और वो इसलिए देता है कि वो अपने प्रभु की महिमा करे। And people of God notoriously tend to forget his blessings once they are blessed. और परमेश्वर लोगों के अंदर ये बड़ा स्वाभाविक स्वभाव है कि वो इस बात में जैसी परमेश्वर उनको आशीष देता, परमेश्वर को भूल जाते हैं। The book of Hosea chapter 13 verse 6 we read.
होशाया 13वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में हम पढ़ते हैं, God says about his people, परमेश्वर अपने लोगों के बारे में कहते हैं, when I fed them, they were satisfied. जब मैंने इजरायली को उन्हें तृप्त किया तो वे तृप्त हो गए, When they satisfied, they became proud. और जब तृप्त होने पर उनके मन में घमंड आ गया Then they forgot me. और वे फिर मुझे भूल गए। Let's never forget his blessings and his word to us. हम कभी परमेश्वर की आशीष और उसने जो हमारे जीवन में किया है भलाई, उसको कभी ना भूलें। Psalm 103 verse 2 says, forget not his benefits. भजन 103 और उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि उसके किसी भी भलाई काम को मत भूलना। As long as we're careful to constantly humble ourselves and receive the grace from God, और जब तक हम अपने आप को नम्र बना रखते हैं, परमेश्वर से आशीष पाते रहते हैं, the grace manifests in so many blessings. और परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें दिखाता है। Today in John 1:16, we read New Testament, John 1:16. यूहन्ना 1:16 में हम पढ़ते हैं नए नियम में, From the fullness of his grace we receive blessing after blessing. क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। There's no limit to blessings we receive today. और हमें जो आज के समय में आशीष मिलती है उसकी कोई सीमा नहीं है। If only learn to count our blessings, we will realize it. If we don't count our blessings, we keep complaining, we won't realize it. जब हम परमेश्वर की आशीषों को गिनते हैं तब हमें पता चलता है उसकी कितनी आशीष ने हमें दी है। अगर हम गिनते नहीं है तो हम महसूस ही नहीं करते परमेश्वर ने हमें कितनी आशीष दी। We receive blessing after blessing. वो हमारे कहता है आशीष के ऊपर आशीष देता है। And when people take note of it, because God will make us the salt of the earth, the light of the world, a display to the world, then please make it a point to lift up the name of Lord Jesus Christ. और जब नम्र होते हैं और परमेश्वर हमारे को ऊंचा उठाता है तो उस समय इस बात को बिल्कुल ठान लें, समझ लें कि परमेश्वर के नाम को ही महिमा दें। The primary purpose of our lives is to glorify his name, the name of Jesus, not just God, God, God. और हमारे जीवन में हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को उठाएं, सिर्फ प्रभु प्रभु ना करते रहे। Telling Christian God's grace is fine. Telling a non-Christian God's grace means he thinks some other God it could be. और एक मसीह को हम बोले हाँ परमेश्वर के अनुग्रह से ये सब चीज है तो वो समझ में आती है, उसके समझ में आएगी। पर एक अन्य जाति जो जानता नहीं परमेश्वर को, उसको बोलेंगे तो सोचेगा किसी उसके देवता ने ऐसा कर दिया। Let's not forget, according to the Bible, there are many gods and many lords. हम बाइबल के अनुसार इस बात को समझ लें कि बहुत सारे परमेश्वर, बहुत सारे देवता हैं। In 1 Corinthians 8 chapter 5 and 6, I would like to read in Hebrew. 1 Corinthians 8 chapter 5 and 6. पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय 5वीं और 6ठी आयत। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। Praise God. There's so many gods and goddesses, lords and gods, man-made gods, but they're not God. बहुत से पृथ्वी पर ईश्वर है, ईश्वर कहलाते हैं और प्रभु कहलाते हैं, पर वो परमेश्वर है नहीं। For us, the one God, the Father, from whom all things came. हमारे लिए एक ही पिता है और उसी से सब चीजें आई हैं। For whom we live. और उसी के लिए हम जीते भी हैं। And one Lord Jesus Christ, through whom all things came and through whom we live. और एक ही प्रभु है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब चीजें आई और हम उसी के द्वारा जीते भी हैं। So we call to lift up the name of the Lord Jesus Christ. और इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाना है। And through him, God the Father. और उसके द्वारा से हम जैसा करते हैं प्रभु को, पिता को भी महिमा मिलती है। Let's never fail to glorify the beautiful name of Jesus. हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह के खूबसूरत सुंदर नाम को महिमा देने से ना पीछे हटें। There's so many things nice about Jesus to each other as Christians. हम मसीह होके एक दूसरे को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत अच्छी बातें बोल सकते हैं। How about talk about him to non-Christians? पर अन्य जाति लोगों को, हम दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे बताते हैं? If people say good things about us, we say God's grace, God's grace. We don't say grace that came to me through the Lord Jesus Christ. जब लोग हम हमारी बात करते हैं तो हम कहते हैं हाँ सब प्रभु की दया है, प्रभु की दया है। हम ये नहीं कहते प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से मुझे ये मिला। As we humble ourselves, he will exalt us. जब हम अपने आप को नम्र करेंगे वो हमारे को ऊंचा उठाएगा। Meaning he lift us up. इसका मतलब कि वो हमारे को ऊंचा उठाएगा, हमारे नाम को ऊपर करेगा। To be visible to the world. और हम संसार के लोगों को दिखाई देंगे।
that in turn we glorify and give credit to the Lord Jesus Christ. और उसके बदले में हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं और सारा श्रेय प्रभु यीशु मसीह को दे देते हैं। People call upon the name of Jesus and be delivered and saved. और लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम को जो पुकारते हैं वो ही छूटते हैं, वो ही बचते हैं। God bless you all. परमेश्वर हम सबको आशीष दे। We're going